Good morning to all the students. Today we are going to study the poem Enterprise written by Nizam Eskil. First of all, we talk about the poet Nizam Eskil. He is an Indian Jewish writer. He had been a poet, actor, playwright and critic also. He studied in Mumbai and in London too. And he is very much known for his Indianness in his writing, because each and every work that he writes or wrote is full of Indianness, with Indian background, with Indian themes. And the poem that we are going to study today is also full of Indianness, and this is an allegory too. And in this poem he shows that how we are full of double standards in our effort to doing something, and how our intention is different from our action. What we want to do always deviate from our emotions, from our real intentions. This poem, which is composed of total 6 stanzas, and each stanza contains 5 lines, means there are total 30 lines in this poem. And each stanza has rhyme scheme, which is A, B, A, B, A. And from beginning, when the poem starts, we get the idea that poet, he is not alone but with other people also, begin to ascend on a journey. What kind of journey? On a pilgrimage, a religious journey. In the beginning, they are very exalted, very enthusiastic about the journey, because we human beings also feel very happy when we start any new work. But when the time passes, with the passage of time, our interest, our exaltation, our enthusiasm for our destination, for our aim fades away. And the same thing happens in this poem too, that how the pilgrims, including the poet, start on a journey called pilgrimage. But human being is full of ego, full of hatred, hostility for his own fellow being. And out of this egoism, out of this jealousy, we forget our real aim and try to get involved in trivial things which have no important meaning, no essence in themselves. Today, we are not going to study the whole poem, the whole 6 stanzas, but only the first 10 lines. So we can get that how the poet named Nizam Eskil start his poem with enthusiasm, and how it ends to the despair, disappointment when the poem ends. So first of all, I recite its first 10 lines, and then after I explain it word by word, and keep it in mind that this poem is not only a poem, because this is a lyrical poem, but this is also an allegory. And what is allegory? Allegory means that work which have a second meaning from what it appears on the surface. It has double meaning. First, that we can see, that we can read, and another that we can have suggestion of that meaning. ऊपर से जिसका मीनिंग अलग होता है और अंदर से कुछ और मीनिंग होता है. जैसे हमारी जो पुरानी पंचतंत्र की कथाएं होती हैं जो हमें शिक्षाएं देती है,
इन द सेम वे दिस इज ऑल्सो डाइडेक्टिक पोएम, नैतिक शिक्षा प्रदान करने वाली कविता है। इट स्टार्टेड एज अ पिलग्रिमेज, exalting minds and making all the burdens light. The second stage explored but did not test the call. The sun beat down to match our rays. We stood it very well. I thought, observed and put down copious notes on things the peasants sold and bought, the way of serpents and of gods. Only just few beginning lines so that you will not feel burdened. It started, here it means pilgrimage, enterprise, ये जो enterprise है उसके लिए it यूज हुआ है, pilgrimage। और pilgrimage को हम religious journey कहते हैं, रिलीजियस जर्नी, धार्मिक यात्रा। इट स्टार्टेड, द रिलीजियस जर्नी स्टार्टेड एज अ पिलग्रिमेज, उनकी यात्रा एक धार्मिक यात्रा के रूप में शुरू हुई थी। तो इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, कवि हैं अपने कुछ साथियों के साथ, अपने कुछ मित्रों के साथ एक धार्मिक यात्रा के लिए रवाना होते हैं, यहीं से कविता की शुरुआत होती है। exalting, very happy, exalting, very happy, and they were very happy when they started their journey, जब उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की थी, they were very exalting, exalting यानी too much happy, अति उत्साह में थे। And we also, human being feel very happy when we start something new in the very beginning of the stage. Exalting mind, वो अपने मन से बड़े उत्साहित थे। क्यों उत्साहित थे? क्योंकि वो नई नई यात्रा के लिए रवाना हो गए थे। And making all the burdens light, making all, और इसी उत्साह की वजह से उनका जो सारा all, जो बर्डन था, जो बोझ था, बोझ यानी मन का बोझ, शारीरिक बोझ, या उनके साथ जितने भी सामान था उनका बोझ, यू कैन टेक इट इन एनी वे। लाइट, लाइट यानी हल्का, क्योंकि जब आदमी उत्साह में होता है तो हर चीज का बर्डन, हर चीज का बोझ, हर एक परेशानी, हर एक मुसीबत उसको छोटी लगने लगती है, उसको हल्की लगने लगती है। और जब आदमी निराश होता है तो छोटी से छोटी चीज भी उसको भारी लगने लगती है, बोझिल सी महसूस होने लगती है। तो कवि अपने अन्य साथियों के साथ जब धार्मिक यात्रा के लिए रवाना होता है तो बड़े एग्जाल्टिंग होते हैं, बड़े बहुत ही वेरी हैप्पी होते हैं, और इसी हैप्पीनेस की वजह से उनका जो सारा बर्डन है, सारा बोझ है, वो लाइट हो जाता, हल्का हो जाता, मन से एकदम हल्के हो जाते हैं। ये उनका पहला स्टेज था। जब भी अपनी यात्रा शुरू करता है तो पहला स्टेज हम व्हेन वी मेक अप आवर माइंड, जब हम अपना दिमाग जो है तैयार करते हैं कहीं जाने के लिए, उस समय हम बड़े उत्साही होते हैं। द सेकेंड स्टेज, जब वो आगे बढ़ते हैं, यहां आगे सेकेंड स्टेज का मतलब है जब वो घर से रवाना हो जाते हैं, घर पे जो तैयारी कर रहे हैं यात्रा के लिए, वो उनका फर्स्ट स्टेज होता है। एंड व्हेन दे स्टेप आउट ऑफ द हाउस, begin to tread on the road, on their way to pilgrimage, starts the second stage. So this whole journey is divided into different stages so that we can very well understand the mental makeup, at which stage and at where, how they feel at the different time, how they feel at the beginning, how they feel when they went out of the house, how they feel in the middle of their journey, and how they feel when they ultimately reach their destination. So that is why, for our simplification to understand this work, the poet has divided the whole journey into different stages. So this was first stage till this word light, then start the second stage explored, और जब वो यात्रा के लिए रवाना हो जाते हैं, they explored, explore का मतलब डिस्कवर करना,
या खोज करना, नई नई चीजें ढूंढना, एक्सप्लोर करना, बट डिड नॉट टेस्ट द कॉल। जब वो घर से बाहर कदम रखते थे, क्योंकि मन के अंदर खूब सारी शंकाएं होती है, खूब सारी कुछ किसी चीज को जानने की इच्छाएं होती है, तो हम हर एक चीज को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं, हर एक चीज के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। हम बड़े ही क्यूरियस होते हैं टू नो अबाउट द अननोन थिंग्स दैट वी हैव नॉट कम अक्रॉस टिल नाउ। अब तक हम जिन चीजों से नहीं मिल चुके हैं, उन चीजों के बारे में जानने के लिए हम आतुर होते हैं, और उसी चीजों को हम क्या करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। तो कवि और उनके मित्र जो धार्मिक यात्रा पर है, वो भी नई नई चीजों को एक्सप्लोर करते हैं। दे फील वेरी हैप्पी एंड वेयर दिस थिंग एक्सप्लोरेशन हैपेंस इन द सेकंड स्टैंजा। बट डिड नॉट टेस्ट, टेस्ट यानी आजमाना, और कॉल, यहां कॉल का मतलब परेशानी कह सकते हो, भाग्य कह सकते हो। अभी लेकिन इस स्टेज तक उन्होंने अपना भाग्य नहीं आजमाया, अभी तक उनके सामने कोई परेशानी नहीं आई। बिकॉज व्हेन अ पर्सन इन इज बिगिनिंग स्टेज स्टार्ट समथिंग न्यू, ही डजंट फेस एनी प्रॉब्लम। तो शुरुआत में उन्होंने एक्सप्लोरेशन शुरू किया, नई नई चीजों को जानने की कोशिश की, लेकिन अभी तक उनके सामने कोई मुसीबत नहीं आई। टेस्ट, टेस्ट किसी को आजमाते हैं, किसी की परीक्षा लेना, तो अभी तक उनकी परीक्षा नहीं ली गई, कहने का मतलब अभी मुसीबतें उनके रास्ते में नहीं आई। द सन बीट डाउन, या सन बीट डाउन मीन्स द सन थ्रोज इट्स हॉट लाइट, इट्स हॉट रेज। सूरज की तेज किरणें पड़ रही थी, तप तपाने वाली गर्मी पड़ रही थी। बीट डाउन, बीट यानी वैसे पीटना होता, सूरज की किरणें नीचे की ओर पड़ रही थी। टू मैच, मैच यानी किसी चीज के बराबर होना, इक्वल होना। आवर रेज, रेज यानी एंगर। और जो सूरज की गर्मी थी वो इतनी तेज थी कि इन यात्रियों के दिल मन के अंदर जो रेस था, जो एंगर था, जो गर्मी थी, उस गर्मी से मैच कर रही थी। यानी बाहर की गर्मी और इन लोगों के अंदर जो यात्रा करने की जो गर्मी थी, दोनों बराबर लेवल की थी। बोथ वर इक्वल टू ईच अदर। तो उनके, यहां हम गर्मी, यहां गुस्से का मतलब हम जोश कह सकते हैं। उनके अंदर जो जोश था यात्रा के प्रति, वो उतना ही तेज था, उतना ही तीव्र था जितनी की सूरज की किरणें थी। वी स्टूड इट वेरी वेल, और इन लोगों ने इस गर्मी को भी बड़ी बखूबी से सहन किया। दे टॉलरेटेड, they bore the heat of the sun without showing any sign of disappointment। बिना कोई निराशा का भाव प्रकट किए हुए उन्होंने सूरज की गर्मी को भी सहन कर लिया। I thought, मैंने सोचा। Here I is used for Nazim Azkil, this writer Nazim Azkil. This I is used for poet. The Nazim Azkil, and when the word I, we are used in any kind of work, whether it is a poem, a novel or drama, an essay, it means it is a first person. First person means it is described by poet himself or the writer himself. जब कोई राइटर, कोई पोएट खुद कहानी का वर्णन करता है, तो उसमें फर्स्ट पर्सन यूज होता है, जैसे यहां आई का प्रयोग हुआ है। आई थॉट, द पोएट नज़ीम एस्किल सेज दैट आई थॉट, उस समय मैंने सोचा। किस समय? जब उन्होंने अपनी यात्रा शुरू कर दी, उनके अंदर का जोश जो है उबाल मार रहा था, उसी तरह जैसे कि सूरज की गर्मी तेज थी। बट दे स्टूड इट वेरी वेल, लेकिन उन्होंने उसको बड़ी बखूबी से, बड़ी हिम्मत से उसका सामना किया, सहन किया। आई थॉट देन द पोएट थॉट, कवि ने सोचा। ऑब्जर्व एंड पुट डाउन कॉपियस नोट्स एंड ऑब्जर्व, जब वो रास्ते पे चल रहे थे तो अनेक चीजों को उन्होंने ऑब्जर्व किया, ध्यान से अनेक चीजों को देखा। पुट डाउन मीन्स राइट, WRITE, राइट यानी लिखना। कॉपियस, कॉपियस यानी इन ह्यूज क्वांटिटी, बड़ी मात्रा में। और नोट्स, किसी चीज के बारे में नोट्स बनाते हैं अपन, लिखते हैं, पन्ने कह सकते हैं।
तो कवि जब अपने अन्य साथियों के साथ जा रहा था यात्रा पर, तो उसने रास्ते पर खूब सारी चीजें देखी, उनको ऑब्जर्व किया। और किसी की आदत होती है कि नई चीजों को जब ऑब्जर्व करते हैं या कहीं घूमने जाते हैं तो उन चीजों को नोटबुक में लिख देते हैं, ताकि इन फ्यूचर जब वो कोई चीज भूल जाते हैं तो उस नोटबुक को देखकर वापस उनको याद आ जाती है। सो ही ऑब्जर्व एंड पुट डाउन, राइट डाउन कॉपियस नोट्स ऑन थिंग्स। किस चीजों के बारे में वो लिख रहे थे? ऑन थिंग्स द पेजेंट्स, पेजेंट्स यानी फार्मर, फार्मर यानी किसान। सोल्ड एंड बॉट, सोल्ड यानी बेचा गया, बॉट यानी खरीदा गया। वो अपनी नोटबुक में क्या लिख रहे थे कि वो जिस जगह से जा रहे थे उस जगह के किसान क्या बेच रहे हैं बाजार के अंदर और क्या खरीद रहे हैं, उन चीजों का वर्णन वो अपनी नोटबुक में लिख रहे थे। क्योंकि उन लोगों के लिए वो चीज नई थी, वो गांव नया था, वहां के लोग नए थे और उन नई चीजों को देखकर दे वर वेरी एक्साइटेड एंड दे कुडंट रेजिस्ट देयर क्यूरियोसिटी टू राइट डाउन अबाउट दिस थिंग्स सोल्ड एंड बॉट बाय फार्मर्स इन देयर नोटबुक्स। The way of serpent and of gods, and they also observed and wrote down about the ways, तरीके of serpent and gods। उन्होंने serpent यानी सांप होता है और goat यानी बकरी होता है। उन्होंने सांप और बकरी के तरीकों को जाना और उनके बारे में लिखा। अब ये कौन से तरीके हैं? serpent के तरीके। Actually this is symbolic. These words serpent and gods are symbolic. As I have already told you, this poem is allegory which gives us additional meaning which is different from its outward meaning. Serpent हमेशा, सांप the serpent is always regarded as evil thing. Serpent is associated with evil things. सांप बुरी चीजों का प्रतीक माना जाता है और जो बकरी होती है इट इज द सिंबल ऑफ इनोसेंट थिंग्स, मासूमियत का प्रतीक बकरी होती है। तो इस धरती पर बुरे लोग भी हैं, अच्छे लोग भी हैं। वो देख रहे थे कि वहां गांव में, बाजार में कुछ बुरे लोग भी हैं जो सांप की तरह हैं और कुछ अच्छे लोग भी हैं जो बकरी की तरह है। उनके तौर तरीकों को उन्होंने देखा, उनके तौर तरीकों को उन्होंने जाना। एंड व्हेन दे completely knew about the ways of the serpent. Serpent means the bad people, evil people, and gods means innocent people, good people of heart. So they know the ways of the serpent and the gods, and they wrote about them in their notebooks. So we shall study this poem only till this line. The next lines or the next part we shall study tomorrow. Today I took only these few lines because I wanted to convey you the real meaning, the theme of the poem, and also the style of the poet in writing his works, and about the biography of the poet Nizam Eskil. Because Nizam Eskil is very famous because he has been considered as the father of modern Indian English literature, poetry. So that is why he is very important poet to study for us. So I hope you got it very well. In the next chapter we will study it in detail. Till that time, thank you very much.